Hello and a very warm welcome to a brand new episode of Times Now's Election Yatra. I'm Pratibha. This is our Delhi edition where we are going to hit the streets in the national capital. The Election Commission has just announced its dates for the Delhi elections. On February 5th, Delhi goes voting, and on the 8th of February, the results will be out. Is it going to be third time lucky for the Aam Aadmi Party, or is the BJP going to spring a surprise, ending its 27-year hiatus in the national capital or not? And what's the role of the Congress Party going to be? Is it going to be a three-way contest, or is it going to be a two-way battle between the BJP and the Aam Aadmi Party, where the Congress Party will be seen lurking behind? What's the mood on the ground? In this show, every day we're going to be speaking to the people, we're going to be speaking to the netas, find out what's the pulse on the ground. So join us in this journey. With 10 years of anti-incumbency of the Aam Aadmi Party, the BJP poses a direct challenge to Kejriwal's dominance in Delhi. Hence, a lot clearly is at stake for Kejriwal's Aam Aadmi Party. He emerged as an anti-corruption crusader, and today his party faces a perception battle. So with Delhi emerging as the stronghold of the Aam Aadmi Party, it's very important to know that 2 terms they have been in power in Delhi. So Delhi has turned out to be a stronghold for the Aam Aadmi Party, but there is a lot more to go for the BJP. Remember, in the Lok Sabha elections, while they've done really well, in the assembly elections, they've not been able to capture the hearts of the people of Delhi. Why is it that the BJP is able to perform well in the Lok Sabha elections, but is not able to do so in the Delhi assembly elections? And what's at stake for the Aam Aadmi Party in Delhi, especially considering that they have anti-incumbency, the corruption charges coming in, especially since Kejriwal was once known as an anti-corruption crusader? How are all of those factors going to play in is going to be the biggest question. चार करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे। दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। Meanwhile, for the Congress, which was once a dominant player, the party saw a dramatic collapse with nearly 90% fall in its vote share since its last victory in 2008 assembly elections. Can they stage a comeback? Certainly, this war of narratives is only set to intensify amid the countdown to voting day. Who has the people's trust, and could Delhi witness any change? We decided to get you a first-hand account from the voters. So the national capital is one place where the BJP has not been managed to come to power for 27 years. The Aam Aadmi Party has been in power here for 10 years. Is there going to be anti-incumbency? What's the role of the Congress going to be? Let's speak to the people here in Janpath, one of the most iconic places in Delhi, and find out what are the key issues for the people of Delhi. There are a lot of people shopping here. I'm sure you know Janpath is one place that people come to for shopping. The winter needs, and here we are seeing a lot of women as well. Madam, Delhi election शुरू होने वाला है अभी कुछ ही वीक्स में. आपके लिए
महिला के तौर से, एज अ वुमेन वोटर और एज अ पर्सन फ्रॉम दिल्ली, एज अ वोटर ऑफ दिल्ली, आपके लिए क्या मेन मुद्दे रहेंगे? दिल्ली का क्लीननेस है और क्राइम रेट इतना बढ़ गया है और दिल्ली में मीन सराउंडिंग स्टेट में से होगा बहुत ज़्यादा लोग मतलब आ गया सारा। आप देखो कोई भी ब्रिज का नीचे कहीं भी देखो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया है। पहले तो मेट्रो का नीचे सारे ब्रिज का नीचे वगैरह फेंसिंग कर कुछ गार्डन वगैरह बना था। अभी आप देखो तो वहाँ पर सारे जो नोमैड्स पीपल आ गया है। इसकी वजह से दिल्ली में क्राइम इतना बढ़ गया है। हर कॉलोनी में DDA का कॉलोनी में एवरी डे कुछ न्यूज़ तो हमें मिल रहा है चोरी का। और दूसरे जैसे दिल्ली में आप कोई भी रूट में आकर देखो आपको टूटा फूटा फुटपाथ वगैरह मिलेगा। दिल्ली पहले ऐसे नहीं थी। इतना क्लीननेस के बारे में बोलो तो कुछ भी नहीं। कहीं भी देखो हाइप आपको कूड़ा देगा। गार्बेज रिमूविंग तो नहीं है, कभी कभी होता है। ये सब पहले फ्रीक्वेंटली होता था, अभी नहीं हो रहा। अभी मैं भी इलेक्शन के सामने जो कुछ दिन पहले कुछ करेंगे, सारे पार्क पहले बहुत अच्छे से मेंटेन करके, अभी देखो कोई भी मेंटेन से ट्रीज वगैरह बहुत सारा लॉन वगैरह कुछ मेंटेन नहीं है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। फ्री देखकर लोगों को आंखों में मोटे डालकर आप गवर्नमेंट देख कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। दिल्ली का फ्रीबीज जो दे रहे हैं, कैपिटल सिटी एक जुग्गी बना दिया टोटली। हर जगह नया जुग्गी ये कर रहा है। कैपिटल सिटी ऐसे नहीं होना चाहिए। कैपिटल सिटी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सारा अभी लास्ट 10 ईयर से सारा खत्म। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि ये नेशनल कैपिटल है एंड वी एक्सपेक्ट द सिटी एंड द एंटायर दिल्ली टू बी वेरी वेल डन। इट्स नॉट अ क्लीन सिटी। It's not a- But who do you think is responsible for it? Do you think Aam Aadmi Party or you think it's LG? State government is responsible to maintain the local issues. Now they are not giving any attention to these things. लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी सरकार है उन्होंने बहुत महिलाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स लाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ सरकार कर ही नहीं रही है। 35 साल से ये बैठे हुए हैं। बार कुलिस वाले एमएमसी वाले आ रहे, बार धक्के देते भगाते। हमको तो 35 साल से 36 साल हो गया पर बैठे। बचपन पूरा खत्म हो गया। आज तक साइड दे ही नहीं हमको। आते पुलिस वाले एमएमसी वाले बार हटाते, फेंक देते, माल उठा लेते। क्या कुछ नहीं करते हमारे लिए। तो इस बार आप बदलाव चाहेंगी कि आपको क्या लगता है? अब तो झाड़ू वाले के देंगे हम वोट आपके चक्कर में। झाड़ू वाले को ऐसा कि उन्होंने अच्छा काम किया है 10 साल में? नहीं करा, मोदी ने भी कहा पर वो मोदी सफाया कर रहा हमारा अभी। सब जगह आया सही कर नहीं रहा। जब रोजी रोटी 35 साल बचपन निकल गया हमारे यहाँ, कुछ कर नहीं रहा हमारे लिए। गुजरात के, हम भी गुजरात के हैं। तो वही तो मैं पूछ रही थी। आप कह रहे हैं कि आप गुजरात में मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वोट भी हम आम आदमी पार्टी को देंगे, केजरीवाल को देंगे। ऐसा क्यों? पानी के लिए सुर दिया, बिजली के लिए सुर दिया है, महिला के लिए सही कर रहा है काम। आपको उनके आने से राहत हुई है आम आदमी पार्टी? सही है, सही है, चल रहा है। BJP is employing a multi-pronged strategy to live up to its challenge as it senses anti-incumbency against the Aam Aadmi Party's decade-long rule and feels that the narrative of Aam Aadmi Party's corruption and misgovernance has percolated to the masses. So the BJP's vote percentage of over 50% in the Lok Sabha elections is in a complete contrast to its 2020 Delhi Assembly election vote share, where it is just over 38%. Why is it that for the BJP, it does phenomenally well when it comes to Delhi in the Lok Sabha elections, winning all the seats from the national capital, but when it comes to the Assembly elections, the BJP is not able to woo the people or win the hearts of the people? Remember, in 2020, the BJP had only 8 seats in the Assembly elections. So what is it that people like about the BJP when it comes to Lok Sabha elections, and why is it that it's not able to turn it around during the Assembly elections? And is it going to be any different this time around because of the anti-incumbency of the Aam Aadmi Party, as well as the fact that the Congress and the Aam Aadmi Party are going to be fighting it out separately? What's the sentiment on the ground? The Aam Aadmi Party has been slowly eating into the Congress's vote share. While BJP has maintained a stable vote percentage, the Aam Aadmi Party's numbers have certainly given the BJP an uphill task in the assembly polls. Is that set to change this time around? What about you? What are the key issues when you go to vote? What do you think are the key issues for you as a voter? नेक्स्ट चांस तो किसी और को मिलना ही चाहिए। वैसे देखो, आपको तो लोगों ने देख लिया, अभी आपने सुना ही है। कोई बोल रहा है कि पानी की समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स तो सबको है ही। तो इससे तो आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू बी? पंजाब से है, पंजाब में भी बीजेपी, सॉरी आप है, यस।
लेकिन कुछ लोगों को तो आराम मिला ही है, जस्ट लाइक जैसे बिजली के बिल माफ़ हुए हैं, वहाँ पर फंडा मेन जो प्रॉब्लम है, लोगों को 600 यूनिट्स माफ़ हैं आफ्टर 2 मंथ, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर ऐसे केजरीवाल, देखो छोटे लोगों को थोड़ा सहारा तो मिलता ही है आम आदमी पार्टी के रहने से, लेकिन आपको क्यों लगता है कि बदलाव हो जाना चाहिए? मतलब जैसे बेटर कुछ और भी बेटर हो सकता है, ये ऐसा नहीं है आप गवर्नमेंट है या बीजेपी है वो कुछ करती ज़रूर है, लेकिन मेन प्रॉब्लम अपनी पब्लिक में है। देखो उन्होंने सब जगह वॉशरूम बनाए, पानी बनाया, वो हम उसको मेंटेन ही नहीं, खुद ही नहीं मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट कोई भी हो वो एक बार तो आपके साथ खड़ी होती है। Let me speak to a few other people as well. Like I mentioned, Janpat, the very name reminds you of shopping, and you can see shops that are lined up all around. It's a cold winter morning, but people have come out to do their shopping. भैया आप यहाँ से ही, आपका दुकान है? काम करते हैं हम लोग यहाँ काम पे। करते हैं आप यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे दिल्ली इलेक्शन में कौन से मेन मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? देखो हमारे हिसाब से तो देखा जाए तो काम धंधा है नहीं मार्केट में, क्यों काम नहीं है। सबसे मेन चीज ये होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, कि काम होना जरूरी है। क्योंकि सरकार किसी को जब ही देती है जब इंसान परेशान होता है, कोई सरकार परेशान होती है। इस मारे अगर कोई भी सरकार बनती है, या कोई भी बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी, काम जरूरी है बस, और कुछ जरूरी नहीं है इतना। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सी सरकार अच्छा काम करती है? आम आदमी पार्टी यहाँ पिछले 10 साल से उन्होंने अच्छा काम किया है? देखो उनके राज में भी वही है कि नाली गटर भरे रहते हैं, गंदा पानी आता है, मोहल्ला क्लिनिक पर दवाइयाँ कभी होती है कभी नहीं होती है, तो ये समस्या हर किसी के लिए है। अब देखते हैं मोदी सरकार अगर आती है तो कुछ हो सकता है बदलाव। भैया आपको क्या लगता है इलेक्शन में मेन मुद्दे क्या है आपके लिए? मेन मुद्दे टू चूज द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर दिल्ली, जो सब कंट्रोल कर पाए हमारे सब एटमॉस्फेयर, जो अच्छे काम, जैसे कि हमारी जैसे दुकान कंफर्म नहीं है, जो पटरी है, हमको चाहिए एक परफेक्ट जगह जहाँ पे परफेक्ट गुजराती मार्केट लग पाए, वैसे जो काम हो। और जो घर के बिजली होते हैं जो सरकार फ्री दे रही है, फ्री में कितना यूनिट आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, ब्लैक मनी कहाँ पे, ये सब छोटी छोटी बातें सरकार को फोकस करके लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो अभी पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है? आम आदमी पार्टी फॉर दिल्ली, यस, मैनी पीपल से कि सही काम किया, अच्छा काम तो किया। आप लोगों को यहाँ पे शॉप सेटअप करने में या फिर बिजली घर में आ रही हो, उसमें आपको हो रहा है हेल्प? यस, हेल्प हो रही है बाई आम आदमी पार्टी, वी आर गेटिंग हेल्प। So you think that उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए? लास्ट टाइम लाइक वी हैड 9000, फिर जब आम आदमी पार्टी लास्ट ईयर जब थी तो बिजली के यूनिट्स कम थे। जैसे 9000 बिल आ रहा था, हमारा आ रहा था 543, लेस आ रहा था, कम हो रहे थे कम तो आपको राहत मिलती है कि जब आम आदमी पार्टी। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अनाउंस कर रही है कुछ, वो उन्होंने भी गारंटीज अपने अनाउंस किए हैं। अभी उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए 2500 पर मंथ, तो आपको लगता है कि लोग ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी कौन सा गारंटी दे रही है, उस हिसाब से वोट करते हैं? देखिए पैसे के लिए तो सब लोग कोई भी वोट करेगा। लाइक अगर ये प्रॉमिस कर रहे, जैसे पंजाब में भी किया था लास्ट टाइम, वो सक्सेस नहीं निकला। अभी इस बार अगर दिल्ली में ये बोल रहे कि करके दिखाएंगे, तो पहले प्रूव करके कुछ अश्योरेंस देके ही सपोर्ट करेंगी पब्लिक। ठीक है, थैंक यू। On the one hand, you have all sides battling it out over welfare schemes and freebies. But on the other, the political discourse is turning bitter. BJP candidate Ramesh Biduri's remarks about Priyanka Gandhi Vadra and the Chief Minister Atishi have raised hackles. The BJP's candidate from the Kalkaji constituency, Ramesh Biduri, not somebody who is new to controversies, is back again with his controversies. This time making a sexist comment first on Priyanka Gandhi Vadra and then also making insulting comments about the Delhi Chief Minister Atishi. And yet, even though the Delhi Chief Minister was seen shedding tears after what he said and she was seen getting overwhelmed, the BJP leader doubled down on his attack and only called them crocodile tears. Is that going to be something that the voters are going to be thinking of when they cast their vote? Do such statements by the netas and then their brazen behavior have an impact on the voters? Or for the voters, is it more about the issues that concern them? Let's find out from the people. First up, listen in to the war of words that took place. कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। अरे ये मारली ना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा,
मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। अपने काम पर वोट मांगनी, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। The political discourse is turning acerbic, but how will this impact the voters? While the BJP has attacked the Aam Aadmi Party time and again, the Aam Aadmi Party has said our work speaks for ourselves. Madam, are you a voter from here? As a voter, आपके लिए as a woman voter, what are the main issues जब आप दिल्ली के लिए वोट करेंगी तो? वैसे मैं ये कहूँ कि अपनी हमारी डेली ज़रूरतों को देखते हुए तो आम आदमी मुझे इसलिए अच्छी लगी कि एक्चुअली वो हर एक छोटे से उसमें आज छोटा सा तबके का जो लोग हैं ना, वो हमेशा यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। उनको ये है कि आपका बिजली फ्री दे रहे हैं और सिर्फ चीज़ें, बसों में इवन ट्रैवल भी। तो मुझे इसलिए तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन वैसे मैं बीजेपी की फॉलोअर हूँ। अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे दिल्ली एक जगह है जहाँ होता है, माई पेरेंटल हाउस है ना इन यूपी, तो मैं वहाँ से यूपी की गवर्नमेंट से, योगी जी की गवर्नमेंट से इतना खुश हूँ कि वहाँ के लिए सोचना पड़ता था रात में 10 बजे आप रोड पे जाएं या ना जाएं। तो आज एकदम आप मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप वैसे वॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इश्यू नहीं है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली में ऐसा होता है कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो सारे 7 सीट जाते हैं बीजेपी को, लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस आते हैं तो लोग आम आदमी पार्टी को प्रेफर करते हैं। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? ये मैं लोगों का तो नजरिया नहीं समझती। लोग है ना, एक्चुअली आज के टाइम में ज्यादातर लोग जिधर साइड के आपकी हवा होगी उसी साइड को लोग घूम लेते हैं। लेकिन अगर डेली जरूरतों को देखते हुए देखें, खासकर महिलाओं को जितनी मतलब इंडिपेंडेंटली वो लोग रह पा रही हैं, दिल्ली में सरवाइव करना इतना इजी हो गया है, जो उनकी केजरीवाल जी की सोच है, बस उसी की वजह से ये हो पाया है। So let me speak to a few of the voters here as well. You know, as Delhi elections are going to be next month, what are going to be the key issues for you? What will be the main issues for you? मेन इश्यूज जो है वो एम्प्लॉयमेंट एंड क्लीननेस। बहुत गंदी दिल्ली हो गई है केजरीवाल सरकार में, बहुत गंदी है दिल्ली। और मैं रोहिणी सेक्टर 25 में रहती हूँ, तो उधर तो एमसीडी वाले आते ही नहीं, ऐसे रूरल एरिया करके छोड़ दिया है उसको। तो मेन इश्यूज ये है, ड्रेनेज सिस्टम। और तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे है पिछले 10 सालों से, आपको लगता है उन्होंने अच्छा काम किया है कि अभी आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी नॉट। नहीं, अच्छा काम नहीं किया। नो। उन्होंने काफी स्कीम्स लाए हैं, इवन फॉर विमेन 2100 रुपीज। अब विमेन को शक्तिशाली बनाओ, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। हम कोई भिखारी थोड़ी है कि 2100 रुपए दे दो, ये दे दो, फ्री बस सेवा दे दो। क्यों दे रहे हो भैया? मत दो, वो हमें नहीं चाहिए। हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमें और भी चीजें आप अच्छी दीजिए। आप ये फ्री बस सेवा 2100 रुपए, ये भिखारी थोड़ी है कि हमें चाहिए ये सब चीजें? नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी और वाटर भी स्कीम्स आती हैं, तो आपको लगता है कि उससे इम्पैक्ट हम लोगों के लिए नहीं है, ये बेसिकली स्लम एरियाज में होते हैं। अभी तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कभी 0 नहीं आया, वाटर सप्लाई का भी बिल पूरा प्रॉपर आता है। तो ये स्लम एरिया में स्लम्स को बसाने के लिए बेसिकली केजरीवाल उठा के बिहार, यूपी एंड ऑल दैट ला करके बस उनको फ्री खाना, फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन दे करके उनसे वोट के चक्कर में वो लेके ला के यहाँ पे बसा रहे हैं, जिसके बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं। दिल्ली और गंदी हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है। आपको लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। So with that, we come to the end of our show. Thank you so much for joining us. We'll be back again tomorrow, speaking to the candidates, speaking to the voters, and finding out what are the key issues that are playing out on the ground. Because in the end, it's all about what the Dil of Delhi Janta really wants. We're going to be back tomorrow. We'll see you there with inputs from video journalist Vimal as well as Mrityunjay. This is Pratibha signing off.